Hello students and namaste. Welcome back to my channel The Shining Stars. Okay, so as you know that we are over with our next unit, that is this demography, its census, its features and its functions. So we have completed this and now I am here with some MCQs, some important MCQs which are, according to me, I think they may come in your exams, or they may be important from the examination point of view if we see it as like that. Okay, so here I will come up with some important MCQs and I really want your comments as well. So with each MCQs, when I just speak it out, you just mention your answer in the comment section. So it's a humble request to all of you that it will give me a feeling that it's a two-way communication. I am delivering and you are also giving me the feedback in the form of commenting on my videos. So just move ahead with the MCQs and give your feedback in the comment section with the help of your answers. Okay, now what is the first question? Let's get started. What is it? It is, which state in India has the lowest sex ratio? Just mark your answer. Question number 1, option A, B, C or D. Okay. So which state in India has the lowest sex ratio? अगर हम इंडिया की बात करें तो lowest sex ratio कौन सी स्टेट में है? और डेफिनेटली अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं तो इट इज़ अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस. ओके, it is understood obviously. So which state has the lowest sex ratio? लोएस्ट सेक्स रेशो की अगर हम बात करें तो वो कौन सी स्टेट का था? आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ हरियाणा. ओके, सो कौन सी स्टेट है जिसका लोएस्ट सेक्स रेशो है? सेक्स रेशो का मतलब आपको पता है ना, सेक्स रेशो मीन्स सेक्स किसे कहते हैं हम यहाँ पे, जिसमें हम मेल्स और फीमेल्स की बात करते हैं, है ना. तो रेशो की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सेक्स की रेशो. तो दैट मीन्स रेशो किसकी, कि फीमेल्स कितनी है आउट ऑफ मेल्स. ओके, इफ़ वी आर कंसिडरिंग 1000 मेल्स, तो अब इन 1000 मेल्स में से कितने जो हैं फीमेल्स हैं, फीमेल्स का नंबर क्या है, फीमेल्स का रेशियो क्या है. सो सेक्स रेशियो मीन्स द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स. तो अब किसका सेक्स रेशियो सबसे कम है, सबसे कम फीमेल्स किस स्टेट में है? दैट इज़ इन द स्टेट ऑफ हरियाणा. Okay, so the right option is option number D. I hope your answer is right. Okay. Okay, now the next question is, World Population Day is celebrated on dash. Which day? On which day is the World Population Day? World Population Day मनाया जाता है on 13th of September, 9th of Feb, 13th of July or 11th of July. It is celebrated on option number C, that is 11th of July. Okay, now the next question is, who is the Registrar General and सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडियन 2011 सेंसस. अब देखो, अगर इस तरह के अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली मार्क किया जाए, क्योंकि काफ़ी आफ्टर 10 ईयर्स जो है ये हमारा जो कमिश्नर जनरल है ये चेंज कभी भी हो सकता है ना. तो यहाँ पे एट प्रेजेंट अगर हम देखें, और आपको मैंने बताया था कि एट प्रेजेंट जो है वो विवेक जोशी जी हैं. ठीक है, तो मिस्टर विवेक जोशी इज़ द करंट Registrar General and Census Commissioner of India. But at the time of 2011 census, it is, who was the Registrar General and Census Commissioner? Mark your answers please. It is Mr. C. Chandramouli ji. ठीक है, so Mr. C. Chandramouli was the Registrar General and Census Commissioner of India at the time of 2011 census. Clear? Okay. Now the next question is, which is the largest state of India 2011 in terms of area? अगर हम एरिया वाइज बात करें तो इन चारों स्टेट में से ऐसी कौन सी स्टेट है जिसका सबसे ज़्यादा एरिया. और ये मैंने आपको जब लेक्चर अपना डिलीवर करा था वहाँ मैंने आपको बताया था, फटाफट से ना आपको एक माइंड में एक पिक्चर सी आ जानी चाहिए अपने मैप की. फटाफट से मेरे माइंड में एक पिक्चर आ गया और मुझे पता चल गया यार मेरे मैप में सबसे ज़्यादा एरिया मुझे किसका दिख रहा है. तो मुझे पता चल रहा है कि अकॉर्डिंग टू एरिया इट इज़ राजस्थान.
ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे गोवा की बात करती हूँ तो गोवा से मेरा मतलब है कि अगर स्मॉलेस्ट पूछा जाता, स्मॉलेस्ट स्टेट की बात की जाती तो मैं गोवा को मार्क करती, बट यहाँ पे लार्जेस्ट स्टेट पूछा गया है इसलिए इट इज़ राजस्थान। अंडमान एंड निकोबार जो है वो नहीं है, हरियाणा भी नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेक्स रेशो। दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। सेक्स रेशो मीन्स जिसमें हम बात करते हैं कि फीमेल्स कितनी है पर 1000 मेल्स। सो दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ सेक्स रेशो। नंबर ऑफ फीमेल्स पर 100 मेल नहीं है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ भी नहीं है, डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड द डेथ रेट भी डेफिनेटली नहीं है। सो इट इज़ ऑब्वियसली कि कितनी फीमेल्स है, अगर हम 1000 मेल्स लेकर चलते हैं तो उसमें जो है रेशो कितना है फीमेल्स का, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज सेक्स रेशो, क्लियर। Okay, moving towards the next question, what is it? In how many years is the official enumeration of population carried out for census? कहते कितने सालों में जो है हम जो ऑफिशियली इन्यूमरेशन करते हैं पॉपुलेशन की, वो कितने सालों के बाद जो है वो कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। ये जो सेंसस है कितने सालों के बाद कैरिड आउट किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है। तो यू मस्ट नो after how many years this census data is carried out. It is in every 10 years, ठीक है। So in every 10 years census data is collected and it is census is carried out. Okay, so it is not in every 1 year, not in every 5 or 2 years, it is always after in every 10 years, हर 10 सालों के बाद जो है सेंसस जो है वो कंडक्ट किया जाता है। एंड द लास्ट सेंसस वॉज इन द ईयर ऑफ 2011। ओके, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि पहला सेंसस कब कंडक्ट हुआ था, कब हेल्ड हुआ था, कंडक्ट या हेल्ड करना इज वन एज द सेम थिंग, तो पहला सेंसस कब हुआ था, इट वाज इन द ईयर ऑफ 1872। ओके, सो फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन द ईयर ऑफ 1872, क्लियर। और अगर आपसे पूछा जाए कि गवर्नर जनरल कौन थे उस टाइम पे जब हमारा फर्स्ट सेंसस कंडक्ट हुआ था जो कि 1872 में था, तो उस टाइम पे हमारे गवर्नर जनरल कौन थे, उस टाइम थे हमारे गवर्नर जनरल लॉर्ड मायो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज विच ईयर इज नोन एज द ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड। आपको मैंने बताया था कि डेमोग्राफिक डिवाइड में कौन कौन से ईयर्स आते हैं, तो मैंने आपको 2 ईयर्स के बारे में बताया, अगर आपको याद होगा तो क्या क्या ऑप्शन था, 1921, 1919, 1920 और 1918। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, तो डेफिनेटली आप देख सकते हो ये फॉल्स नहीं कर रहे हैं, तो इट इज़ द ईयर ऑफ 1921। एक 1921 था और दूसरा कौन सा ईयर था, 1981। ये दोनों ईयर्स ही ईयर्स ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड है, बट द रीज़न आर डिफरेंट। 1921 is known to be the year of demographic divide. Why? Because after this year the population started increasing, but after 1981 the population started decreasing. So that is why these both years are termed as the years of demographic divide, ठीक है। So you must know this thing and just keep these things in your mind and just pen it down, okay. Now the next question is which of these is or are the essential features of the census। हमें बताना है कि इनमें से, इन 4 ऑप्शंस में से कौन से एक भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकते हैं जो कि एसेंशियल फीचर्स हैं, कुछ खास जो है क्वालिटीज़ हैं सेंसस की। तो बताइए क्या क्या है, क्या स्पॉन्सरशिप है, यूनिवर्सलिटी है, इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से क्या ऑप्शन आएगा, तो फटाफट से मार्क कीजिए। स्पॉन्सरशिप मैंने आपको बताया था कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज़ जो है ये कोई भी इसको कंडक्ट कर सकता है, मीन्स सभी मिलके करते हैं इसे। यूनिवर्सलिटी भी इसका एक फीचर है, कंप्लीट इन्यूमरेशन की जाती है ऑफ ईच एंड एवरी यूनिट, इंडिविजुअल यूनिट्स जितनी भी है सबको कवर किया जाता है। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट वन, एज दीज ऑल ऑप्शंस आर द राइट वंस, ओके। Okay, now the next is which one of these is not a function of utility of census। utility of census भी आपको मैंने बताया था ना, functions ही utility of census है, ठीक है। तो किन किन जो है
एरियाज में जो है इसका ये फंक्शन नहीं है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द यूटिलिटी ऑफ सेंसस. तो ये भी मैंने आपको बताया कि किन किन एरियाज में यूटिलिटी है और किन एरियाज में नहीं है. तो लेट अस सी कि इन विच एरियाज इट हैज़ एंड इट हैज़ नॉट. बिजनेस और इंडस्ट्री में है, पढ़ा था आपने. यू विल से यस मैम. सेंसस डेटा फॉर रिसर्च पर्पसेस. रिसर्च पर्पसेस के लिए भी हम सेंसस डेटा को यूज़ कर सकते हैं. डेफिनेटली यस. पॉपुलेशन सेंसस टू अदर टाइप्स ऑफ सेंससेस एंड सेंसस डेटा फ्रॉम पंचायत. ठीक है. सेंसस डेटा हम रिसर्च पर्पसेस के लिए भी यूज़ करते हैं. जो पॉपुलेशन सेंसस है वो अदर टाइप्स ऑफ सेंसस में भी हेल्प करता है. बट सेंसस डेटा हम पंचायत से नहीं लेते हैं. ऐसा नहीं है कि हम पंचायत से ही सेंसस डेटा कलेक्ट कर लेते हैं और फर्दर एनालिसिस करते हैं. नहीं. सो दिस वन इज़ अ रॉन्ग. इन्होंने यही पूछा था ना विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट. तो आपको नॉट पे फोकस करना है. आप स्टूडेंट्स क्या करते हो, नॉट वर्ड को ना इग्नोर कर देते हो और फटाफट से वो देखते हो कि अच्छा फंक्शंस पूछा है और मे बी हो सकता है फोर्थ ऑप्शन यही हो कि ऑल ऑफ दीज हो. तो आपने देखा विच वन ऑफ दीज इज फंक्शन, नॉट को इग्नोर ही कर दिया और ऑल ऑफ दीज मार्क कर दिया. घर आके जब दोबारा क्वेश्चन पढ़ा तो फिर देखा ओहो ये तो नॉट पूछा था और मैंने तो ऑल ऑफ दीज कर दिया. तो ऐसा नहीं करना है. जब भी मैं बोलती हूँ जब भी क्वेश्चन पढ़ते हो ना उसको 2-3 अटेम्प्ट्स दो. 1 मिनट लगा लो अपना पूरा क्वेश्चन पढ़ने पे, लेकिन उस 1 मिनट में आपको उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्लियर होना चाहिए. सो दैट कि जब आप आंसर पे आओ ना तो आप आंसर ऑप्शन देखने से पहले ही आपके माइंड में आंसर फ्रेम हो जाए और जब आप ऑप्शन देखो आपको वो एग्जैक्ट दिखे और आप कंफ्यूज हो ही ना. ठीक है. तो वो कन्फ्यूज़न टोटली दूर हो जाएगा और आपका ऐसा नहीं होगा कि ये हो सकता है या ये हो सकता है. यू विल बी डेफिनेटली क्लियर विद योर ऑप्शन, विद योर राइट ऑप्शन. क्लियर. ओके. Now the next one is which one of the following activities comes under your primary activity. इन चारों में से ऑप्शंस में से आपको बताना है जो प्राइमरी एक्टिविटी कौन सी आती है. ठीक है. तो प्राइमरी एक्टिविटी मीन्स आप फिशिंग की बात कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन की कर रहे हो, बैंकिंग या ट्रांसपोर्ट. वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो दिस थिंग. व्हाट आर दे? प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज. ओके. प्राइमरी, secondary and tertiary. प्राइमरी मीन्स जो एकदम फर्स्ट हैंड, जो जैसे फिशिंग वगैरह जिसमें माइनिंग आ गई. ठीक है. तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं दे विल ऑल कम अंडर योर प्राइमरी सेक्टर. सेकेंडरी हो गया जहाँ पे आप इंडस्ट्री रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं. ठीक है. जितनी भी फर्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ होगी, इंडस्ट्री रिलेटेड एक्टिविटीज़ होगी, दे ऑल कम अंडर द सेकेंडरी वन. नाउ द टर्शरी सेक्टर कम्स. इन टर्शरी सेक्टर ऑल अदर एक्टिविटीज़ अदर देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी विल कम अंडर योर टर्शरी. जितनी भी जैसे बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर जितना भी हो गया आपका, ट्रांसपोर्ट हो गई, कम्युनिकेशन हो गया. ठीक है. तो जितने भी फाइनेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, होटल्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह, दे ऑल कम अंडर योर टर्शरी सेक्टर. ठीक है. तो यहाँ पे इन्होंने पूछा था प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में. तो अब आप इजीली आप इसमें से बाइफिकेट कर सकते हो कि विच ऑप्शन विल कम अंडर योर प्राइमरी एक्टिविटी. डेफिनेटली यू विल से मैम ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट वन. ठीक है. ये जो बैंकिंग और ट्रांसपोर्ट है ये टर्शरी सेक्टर में आता है. कंस्ट्रक्शन आपका सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है. ठीक है. सो ऑप्शन ए ही आपके पास बच जाता है. ओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ही आपका ये आ गया है कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कॉमर्स कम अंडर द प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ या टर्शरी एक्टिविटीज़ या फिर रूरल एक्टिविटीज़. तो रूरल एक्टिविटीज़ तो डेफिनेटली नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वी आर 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. और ये जो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कॉमर्स है ये किस में आएगा? फटाफट से आंसर मार्क करिए अपना. ओके. 5 4 3 2 1 एंड गो. आपको पता है ये जितने भी हैं ये आता है ऑप्शन नंबर सी में, टर्शरी एक्टिविटीज़ में. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज. मोस्ट पॉपुलस कंट्री जो है पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं. देखो अब यहाँ पे आपको वर्ल्ड पे फोकस करना है कि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलस कंट्री के बारे में पूछा है कि इंडिया के बारे में नहीं पूछा. इंडिया की बात होती तो बात हम अलग करते. ठीक है. बट यहाँ पे पूरे वर्ल्ड की बात की गई है. तो पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री? इट इज़ चाइना. ठीक है. यूनाइटेड स्टेट्स भी नहीं है, इंडिया भी नहीं. इंडिया इज नेक्स्ट टू चाइना. ठीक है. सो
China is the first one and India is ranked second when when we talk about the most populous country of this world. Okay. Okay. Now the next question is स्टेट हैविंग द हाईएस्ट लिटरेसी रेट. अब आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी स्टेट है जिनका लिटरेसी रेट जो है वो सबसे ज़्यादा है. लिटरेसी रेट मीन्स सबसे ज़्यादा लोग जो है जहाँ पे पढ़े लिखे हैं. तो ऐसी कौन सी जो है वो स्टेट है इन चारों में से जिसमें आपको बताना है कि जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा लोग जो है पढ़े लिखे हैं. क्या पंजाब में है, क्या तमिलनाडु में है, क्या JNK में है, क्या केरला में है. पर फटाफट से मार्क कीजिए अपने ऑप्शंस. 5 4 3 2 1 एंड गो. द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, केरला. ठीक है. सो इट इज केरला इन विच वी हैव द हाईएस्ट लिटरेसी रेट. मीन्स 100% एट present 100% of the population is literated over there. Okay, but according to 2011 census कम था, 92% के अराउंड था, बट एट प्रेजेंट 100% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिटरेट. Okay, now the next question is which year is considered as the year of demographic divide. इन चारों में से आपको बताना है कि डेमोग्राफिक डिवाइड का ईयर कौन सा था. आई थिंक दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड. ओके, 1931, 1941, 1921 और 1961. I think I have to mention it over 1981, but it's written mistake that I have marked option D as 1960. Okay, no, hardly matters. So आपको बताना है कि which year is considered as the year of demographic divide. Either 1931 और 41 और 21 और 1961. तो आपको ये पता है, क्लियर है. हमारे पास दो ईयर्स थे, एक 1921 and the second one is 1981. Clear? This I have already explained you. Clear? Okay, next question is birth rate is the number of live births per 1000 persons in dash what. ठीक है. अगर हम बर्थ रेट की बात करें, बर्थ रेट मीन्स कितने लाइव बर्थ हो रहे हैं पर 1000 पर्सन. अगर हम 1000 पर्सनस की बात करते हैं तो 1000 पर्सनस में जो रेशियो है वो लाइव बर्थ कितने हो रहे हैं. ठीक है. तो लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन पर किस ईयर में हम बात करेंगे. क्या हम 10 सालों की बात करेंगे, क्या हम 1 साल की बात करेंगे, क्या हम 4 सालों की बात करेंगे कि 4 सालों में कितने लाइव बर्थ हुए पर 1000 पर्सन, या 10 सालों में कितने लाइव बर्थ हुए पर 1000 पर्सन, या 6 सालों में कितने लाइव बर्थ हुए पर 1000 पर्सन. ऐसा नहीं है. जब भी हम कोई स्टडी करते हैं तो गिवन ईयर में ही करते हैं. ठीक है. सो इट इज़ ऑलवेज इन द ईयर, इन अ ईयर. ईयर को ही हम क्या लिखते हैं, 1 ईयर. ठीक है. सो हेयर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ. ओके. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लो पॉपुलेशन स्टेट. अगर हमने अभी पहले बात करी थी हाई पॉपुलर स्टेट की, हाई पॉपुलर स्टेट की बात की जाए तो आपको यूपी बताना है. बट यहाँ पे पूछा गया है कि लो पॉपुलेशन स्टेट कौन सी है. तो लो पॉपुलेशन कौन सी है, A, B, C और D. Mark your answers in the comment section please. 5 4 3 2 1 and go. So the here right option is option number A, सिक्किम. लो पॉपुलेशन स्टेट कौन सी है, सिक्किम है. अगर हाईली पॉपुलस पूछी जाती तो इट इज़ यूपी. स्टेट के बारे में बात करें क्योंकि यहाँ पे इन्होंने स्टेट को मेंशन किया है. ठीक है. बट अगर यहाँ पे यूनियन टेरिटरी के बारे में पूछा जाता है कि हाईली पॉपुलस यूनियन टेरिटरी कौन है, देन इट इज़ दिल्ली. ठीक है. सो जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट इफ वी टॉक अबाउट द स्टेट देन यू हैव टू stick to that state only. You don't need to mingle between, don't have to mug up between, or you don't have to be confused between this state or union territory. ठीक है. If it is state then just be clear about the state. If it is union territory then just be clear about the union territory. ठीक है. Now the question is if it is if it is talking about the highly populous or low population state. ठीक है. और यूनियन टेरिटरी. नाउ हेयर इट इज आस्किंग अबाउट द लो पॉपुलेशन स्टेट, नॉट यूनियन टेरिटरी. सो द लो पॉपुलेशन स्टेट इज सिक्किम. If it is highly populous state then it is UP. If it was talking about the low population
union territory, then it is Lakshadweep, and if it was talking about the highly populous UT, then it is Delhi. ठीक है, तो यहाँ पे हम सिक्किम को सही बताएंगे. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज फिनिश. ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द MCQs ऑफ दिस यूनिट. इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है. जितना इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा था वो इसमें कवर अप हमने कर लिए हैं. तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वाइटल स्टैटिस्टिक्स पे, क्योंकि सभी मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि मैम इसके बाद आप वाइटल स्टैटिस्टिक्स पे आओ. तो वाइटल स्टैटिस्टिक्स मैं कल स्टार्ट करूँगी और कोशिश करेंगे कल हम उसको पूरा यूनिट को कंप्लीट कर दें, और उसके बाद मैं इंडेक्स नंबर पे आऊँगी. ठीक है, तो आपकी रिक्वेस्ट की वजह से मैं पहले वाइटल स्टैटिस्टिक्स ही करूँगी, क्योंकि मुझे पता आपके ही लेक्चर्स बना रही हूँ. तो जो स्टूडेंट डेफिनेटली मुझे देख रहे हैं, तो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है डेफिनेटली आई हैव टू मीट दोज फर्स्ट. ओके, सो एज पर योर रिक्वेस्ट आई विल start with the vital statistics and will complete it soon itself in the tomorrow lectures, or always sorry, tomorrow lecture itself. Okay, so let us find up this lecture over here only. We'll come up with the next unit, that is vital statistics. Till then, take care of yourself and take care of your family members also. Thank you.